ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲੈਟਲੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਫਿਲੈਟਲੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪਸ ਔਰ ਪੋਸਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵੀਕ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚਿਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਸਤਾਵਾ ਕਵਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਓ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। LA ਲੇਕਰਸ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਲੇਕਰਸ, LA USA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। LA ਲੇਕਰਸ ਦੁਆਰਾ 17th ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17th ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਮਿਆਮੀ ਹੀਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਲੇਕਰਸ ਦੁਆਰਾ 17th ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਤੇਚਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ USA ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਤੇਚਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਤੇਚਾ। ਸ਼ਾਈ ਐਵਰਾ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਅਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭਲਕੋਨਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁੰਭਲਕੋਨਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਅਵਾਰਡ। ਕਿੱਥੇ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਈਵਰਾ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ FMSCI ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? 51th ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 50th ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੂੰ। ਔਰ 51th ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੂਸੇਰਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਹੋਏਗੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲੋਗਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल दी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल दी जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है दे वेचवा करानी दे वेचवा करानी। इस ऑटोबायोग्राफी नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज़ किया गया। इस तो इलावा परिवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी परिवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी इन्हां दे नाम दे उत्ते रखिया है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल के नाम के उत्ते। लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परिवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और डेविड ऑटनबोरो बेसिकली एक नैचुरलिस्ट ने। इन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के नाल मिल के एक मीटिंग की। मीटिंग दे विच इन्होंने डिसाइड किया अर्थ शॉर्ट प्राइज़ बनाया जाएगा टू बूस्ट क्लाइमेट इनोवेशन। अर्थ शॉर्ट प्राइज़ अनाउंस किया गया है क्लाइमेट नू बूस्ट करने के लिए। बेसिकली इस दे विच अगर गल करिए 50 मिलियन यूरोज़ प्राइज़ मनी होएगी 50 मिलियन यूरो प्राइज़ मनी होएगी इस प्राइज़ के अंडर। ठीक है, अगर आप इसनू डॉलर्स दे विच गल करते हैं तो 65 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट है टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव वाज ई लॉन्च बाय ट्राइफेड द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के नाल मिल के। यानी कि अर्जुन मुंडा खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने विद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड IIT कानपुर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और IIT कानपुर के नाल मिल के इसनूं बनाया गया। नेक्स्ट है IIT मद्रास द्वारा एक एंटी माइक्रोबल फूड रैपिंग मटीरियल लॉन्च किया गया। एंटी माइक्रोबल फूड रैपिंग मटीरियल बेसिकली अगर आप फूड में जो रैप करते होंगे तो उसनों बैक्टीरिया तो बचाने के लिए एंटी माइक्रोबल फूड रैपिंग मटीरियल बनाया गया IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा एक नेशन वाइड कैंपेन कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया जिस दे नाल काओ डंग का यूज़ करके या पंच ग्यावा प्रोडक्ट्स यूज़ करके दिवाली फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाएगा। 2019 दे विच राष्ट्रीय कामधेनु आयोग शुरू किया गया सी हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच। एग्जिम बैंक द्वारा 400 मिलियन US $, 400 मिलियन US $ प्रोवाइड किए गए ने मालदीव्स नू लोन प्रोवाइड किया गया फाइनैंस कनैक्टिविटी प्रोजैक्ट के लिए। ताइवान ने पार्टनरशिप की है इंडिया के नाल इंडियन मैरीटाइम कॉरपोरेशन के नाल इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन के लिए ताइवान द्वारा इंडियन मैरीटाइम कॉरपोरेशन के नाल एग्रीमेंट किया गया। सिमिलर एग्रीमेंट रिसेंटली नॉर्वे द्वारा भी किया गया सी। नॉर्वे नहीं इंडोनेशिया द्वारा। सिमिलर एग्रीमेंट रिसेंटली इंडोनेशिया द्वारा भी किया गया सी। नेक्स्ट है अ फायर ब्रोकन आउट ऑफ स्लोप्स ऑफ माउंट किलीमंजारो। इथों स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट किलीमंजारो केड़ी कंट्री दे विच है। माउंट किलीमंजारो केड़ी कंट्री दे विच है या माउंट किलीमंजारो केड़े कॉन्टीनेंट दी हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका दी तंजानिया दे विच लोकेटेड है। तंजानिया कैपिटल डोडोमा करंसी शिलिंग चलती है। तंजानिया कैपिटल डोडोमा करंसी शिलिंग चलती है। नेक्स्ट है FATF द एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिहड़ा इसने की किया पाकिस्तान नू एनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट दे विच रखिया है। एनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट दे विच ताकि टैरर फाइनेंसिंग नू रोकिया जा सके। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव इंडिया के नैक्सट एंबेसडर टू अल्बानिया बनाए गए हैं। इंडियन एंबेसडर टू अल्बानिया राहुल श्रीवास्तव अपॉइंट किए गए हैं। अल्बानिया कैपिटल तिराना है। करंसी लेक चलती है। इस तो इलावा अल्बानिया यूरोपियन कंट्री है। याद रखना है अल्बानिया तो याद रखना है मदर टेरेसा का नाम। मदर टेरेसा ओरिजिनली अल्बानिया तो बिलोंग करते सी। नेक्स्ट है मनोज कुमार भारती इंडिया के नैक्सट एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया के लिए इंडियन नैक्सट एंबेसडर कौन ने? मनोज कुमार भारती। कैपिटल जकार्ता है। करंसी रुपया चलती है। इंडियन आर्मी द्वारा एक एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच
महाराष्ट्र पुलिस के नाल पुणे दे विच कंडक्ट की गई। इंडियन आर्मी द्वारा एक एंटी टैरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच महाराष्ट्र पुलिस के नाल कंडक्ट की गई पुणे दे विच। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन दे विच त्रिपुरा डिस्कस करांगे। 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 दे विच बनाया गया सी। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी अगरतला है। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव, चीफ मिनिस्टर ने बिप्लब कुमार देव, गवर्नर ने इत्थे दे रमेश बायस। 8 डिस्ट्रिक्ट, 2 लोक सभा सीट, 1 राज्य सभा सीट है। यूनिकैमरल है, विधान सभा की सीट्स ने 60 सीट्स ने विधान सभा दियाँ, यूनिकैमरल लैजिस्लेचर है। बॉर्डर स्टेट्स दे विच असम और मिजोरम दे नाल शेयर करता बॉर्डर। इंपोर्टेंट 2 नैशनल पार्क्स ने, क्लाउडर लियोपार्ड नैशनल पार्क और राजाबरी नैशनल पार्क। क्लाउडर लियोपार्ड नैशनल पार्क और राजाबरी नैशनल पार्क कित्थे है? त्रिपुरा दे विच। अच्छा, राजाबरी नैशनल पार्क त्रिपुरा दे विच है तो राजा जी नैशनल पार्क कित्थे है? राजा जी नैशनल पार्क हिमाचल प्रदेश दे विच है। गुमती सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है? त्रिपुरा दे विच। नैक्सट चलते हैं। अज दे फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड फूड डे अज दे दिन ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि 16 अक्तूबर को। 16 अक्तूबर वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कह सकते हैं या इंटरनेशनल फूड डे भी कह सकते हैं 16 अक्तूबर को। ठीक है जी। 12 अक्तूबर को अर्थराइटिस डे डिस्कस किया सी आपां ने। 12 अक्तूबर को जिसकी थीम रही सी इट्स इन योर हैंड टू टेक एक्शन। इट्स इन योर हैंड टू टेक एक्शन। 13 अक्तूबर को नैशनल फिलैटली डे आप डिस्कस कर लिया। नैशनल फिलैटली डे। इस तो इलावा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 14 ते 15 के रिलेटेड भी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 14 वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही प्रोटैक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। प्रोटैक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्तूबर। 15 अक्तूबर को यानी कि कल के दिन काफ़ी इंपोर्टेंट दिन सीगा, बर्थ एनिवर्सरी सी 11th प्रेजिडेंट APJ अब्दुल कलाम। अगर आप गल करते हैं किसी मोटिवेशन की तो सब तो इंपोर्टेंट नाम बनता है एक APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसे परसन जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड परसन ने, जिन्हों की लाइफ एक परसन को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। 11th प्रेजिडेंट सीगे इंडिया के APJ अब्दुल कलाम। 1931 के इन्हों का बर्थ होया सी और 2002 तो लैके 2007 तक ये इंडिया के प्रेजिडेंट रहे सी। इन्हों मिसाइल मैन के नाम नाल भी जानिया जाता है। पोखरण टेस्ट के काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल सीगा इन्हों का इंडिया को न्यूक्लीयर कंट्री बनाने दे विच। इस तो इलावा इन्हों भारत रत्न दिता गया सी 1997 दे विच। भारत रत्न दिता गया सी 1997 दे विच। जिहड़ा आपां हुण डिस्कस करके हटे हैं वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जिहड़ा ये 16 अक्तूबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बार आप डिस्कस किया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी, इसने अपनी 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है। अपनी 75th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है 16 अक्तूबर को। 16 अक्तूबर 1945 के विच इसनू बनाया गया सी। रोम दे इटली दे विच इसका हैडकुआटर है और क्यू डोंगियू इस दे हैड ने। रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने, नाम इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर ही अगर आप गल करिए फूड प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसनों नोबल पीस प्राइज़ दिता गया सी। याद रखना है नोबल पीस प्राइज़ 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड के रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होएगी, हैडकुआटर कित्थे है? रोम दे विच है, ये याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, FAO रिलेटेड याद रखना है 2021 नू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 ईयर नू इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स ऑब्जर्व करेगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड वैजीटेबल्स। याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि इंडिया और चिली ने कोलैबोरेशन की सी एक मीटिंग करने के लिए 2020 दे विच, ताकि 2021 ईयर नू फूड एंड वैजीटेबल इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड वैजीटेबल ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है जी, याद रखना है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਕੋਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ FAO ਦੀ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 75 ਰੁਪੀज़ ਦਾ। ठीक है, क्योंकि 75th एनिवर्सरी है, इस करके 75 रुपीज़ का कॉइन रिलीज़ किया गया। ठीक है, इंडिया भी FAO का मैंबर है, याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इस तो इलावा रिसेंटली इंडिया ने 100 रुपीज़ का कॉइन रिलीज़ किया विजया राजे सिंधिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा विजया राजे सिंधिया के लिए 100 रुपीज़ का कॉइन रिलीज़ किया गया सी। ठीक है जी, सारे नाम इंपोर्टेंट बन गए, याद रखने ने। FAO का हैड का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगा, क्यू डोंगयू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लूज द सीट इन UN ह्यूमन राइट्स काउंसल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसल, काफ़ी अलग अलग तरीके के नाल इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इंटरस्टिंग न्यूज़ है, ध्यान नाल डिस्कस करते हैं। की होया कि यूनाइटेड नेशंस की जिहड़ी ह्यूमन राइट्स काउंसल है, इस दे विच 4 सीटां खाली सीगियां। ठीक है, 4 सीटां खाली सी, इन्हां नूं फिल करन दे लई 5 सीटां ने इलैक्शन लड़े, 5 कंट्रीज़ ने इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट किया, जिस दे विच किहड़ी कंट्री हारी है? सऊदी अरेबिया हारी है। यानी कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और क्यूबा, ये 4 कंट्रीज़ हुण यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसल की मैंबर बनियां ने। ठीक है, इसे तरीके नाल डिस्कस करांगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन दे मैंबर किहड़ी कंट्री बनी है? पाकिस्तान, चाइना, रशिया और क्यूबा। ठीक है, बेसिकली अगर आप गल करते हैं, काफ़ी शॉकिंग सीगा कि पाकिस्तान को सब तो ज़्यादा वोट्स दित्तियां गईयां सी। इस दे विच पाकिस्तान ने सब तो ज़्यादा वोट्स हासिल कीतियां इसका मैंबर बनने दे विच। ठीक है, रशिया और क्यूबा नूं तां बिना किसी ओपोजिशन तो ही दे दित्तियां गईयां सी सीटां। मेनली इलैक्शनस इन्हां 3 कंट्रीज़ दे विच होया, जिस दे विच पाकिस्तान और चाइना जित गए तो सऊदी अरेबिया नूं सीट नहीं मिली है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की हुण गल करते हैं तो यह जनेवा दे विच इसका हैडकुआटर है। इसका हैडकुआटर कित्थे है? जनेवा, स्विट्जरलैंड दे विच। ठीक है जी, 2006 दे विच इसनूं बनाया गया सी। 2006 दे विच बनाया गया सी। 47 मैंबर ने, इसके 47 मैंबरस ने। इंडिया वालों यूनाइटेड नेशंस दे न्यूयॉर्क दे लई एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी, रिप्रजेंटेटिव अपॉइंट किए गए सी। प्लस इंडिया वालों एक परसन नूं यूनाइटेड नेशंस दे जेनेवा के ऑफिसिस दे लई एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी। ठीक है, दोनों का नाम कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। न्यूयॉर्क के लिए अलग अपॉइंट किए गए सी, यूनाइटेड नेशंस के जिहड़े ऑफिसिस जेनेवा दे विच ने उन्हां दे लई एंबेसडर अलग अपॉइंट किए गए सी। दोनों का नाम कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए जिस तरीके नाल यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन है, उस तरीके नाल इंडिया का भी नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। उसके हैड का नाम याद रखना है HL दत्तू। काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगा नाम। न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है HL दत्तू। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस की गल की है तो यूनाइटेड नेशंस के भी 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। 75 ईयर्स कदों पूरे हो रहे हैं? 24 अक्तूबर नूं। 24 अक्तूबर नूं यूनाइटेड नेशंस के भी 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। और उस तो बाद की किया जाएगा? यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हैल्ड की जाएगी और हो सकता है कि इंडिया भी इसका परमानेंट मैंबर बना दिता जाए। यूनाइटेड नेशंस के विच 5 परमानेंट मैंबर्स ने, 10 नॉन परमानेंट मैंबर्स ने। इंडिया नॉन परमानेंट मैंबर है, याद रखना है, 2 सालों के लिए। नेक्स्ट है, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स बाय आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इंडिया का इस दे विच किन्नवां रैंक है? जिहड़ा पासपोर्ट इंडेक्स है, एक हैले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, उस दे विच इंडिया का रैंक 84 सीगा ते टॉप किया गया सी जापान द्वारा। इंडिया का रैंक हैले पासपोर्ट इंडेक्स दे विच 84 सीगा ते टॉप किया गया सी जापान द्वारा। जिहड़ा है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है, इस दे विच इंडिया की रैंकिंग 58 रही है। 58 आउट ऑफ 75 कंट्रीज़। 75 कंट्रीज़ के विचों इंडिया 58th नंबर पर रहा है। यानी कि और इस दस्या भी गया कि 52 डेस्टिनेशनस के लिए इंडियन पासपोर्ट यूज़ किया जा सकता है। सिमिलर टॉप किया गया इस न्यूजीलैंड द्वारा।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 129 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ 31 ਸਿਰਫ 31 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन आप सिंपल याद रखांगे कि इंडिया किन्नवें रैंक ते रहा 58 आउट ऑफ 75 कंट्रीज़ दे विचों टॉप किया गया न्यूजीलैंड द्वारा तो लास्ट नंबर ते अफगानिस्तान और इराक रहे ने। अफगानिस्तान और इराक रहे ने। ठीक है जी। बाकी ऑप्शनस दे लई अगर आप गल करिए 44th नंबर ते इंडिया 44th नंबर ते डिजिटल कंपीटीटिव इंडेक्स दे विच रहा सी। डिजिटल कंपीटीटिव इंडेक्स USA द्वारा टॉप किया गया और इंडिया रहा 44th नंबर ते। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इंपोर्टेंट रैंकिंग है, ज़्यादातर एग्जाम दे विच पूछी जाती है। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की गई सी और इंडिया रहा सी 63rd नंबर ते। ठीक है। UPPSC दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दा 112 इंडिया की रैंकिंग जेंडर गैप दे विच रही सी। जेंडर गैप इंडेक्स दे विच इंडिया 112 नंबर ते रहा सी, टॉप किया गया आइसलैंड द्वारा। 117 इंडिया की रैंकिंग किड्स राइट इंडेक्स दे विच रही सी। ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स इस दे विच भी आइसलैंड द्वारा ही टॉप किया गया सी। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप काफ़ी इंपोर्टेंट रहिंदी है रैंकिंग, ये भी पूछी जाती है एग्जाम दे विच। इस तो इलावा हंगर इंडेक्स पूछा जाता है। इंडिया की रैंकिंग 102 रही सी। हंगर इंडेक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग 102, जेंडर गैप दे विच 112 याद रखनियां ने। नैक्सट है हू हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज। इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज अवार्ड दिता गया है। इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज इस अवार्ड के नाल किहड़े परसन नूं नामित किया गया, किहड़े परसन नूं इस अवार्ड नूं दिता गया है? अमैनुअल असरैत नूं इस अवार्ड के नाल नामित किया गया है। बेसिकली इमैनुअल असरैत ने जिहड़े ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? एरिट्रीआ तो बिलोंग करते हैं। एरिट्रीआ कंट्री तो बिलोंग करते हैं। एरिट्रीआ की जिहड़ी कैपिटल है वो इंपोर्टेंट बनेगी असमारा कैपिटल है। और करंसी की गल करिए नफका, असमारा कैपिटल है ते कंट्री की गल करंसी की गल करिए नफका है। एरिट्रीआ तो बिलोंग करते हैं अमैनुअल असरैत इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज। सारा हाल की गल करते हैं, इन्हों का नाम आप डिस्कस किया सी BBC शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दे विच 2 बार जितने वाले BBC शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2 बार जितने वाले इकलौते राइटर ने सारा हाल। लुइस गलक USA तो ही बिलोंग करते हैं। USA के ऑथर ने। इन्हों नोबल प्राइज़ दिता गया किस दे लई? लिटरेचर दे लई। नोबल प्राइज़ लिटरेचर 2020 लुइस गलक। मैरिस्के लूकस यंगेस्ट बुकर प्राइज़ जितने वाले परसन बने ने। बुकर प्राइज़ जितने वाले यंगेस्ट परसन बने ने मैरिस्के लूकस। इन्हां दी बुक सीगी द डिसकंफर्ट ऑफ लिविंग बुक दे लई इन्हां ने ये प्राइज़ जित्तिया सी। कृतिका पांडे कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जित्तिया गया सी इन्हां द्वारा। कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किन्हां द्वारा जित्तिया गया सी? कृतिका पांडे द्वारा। ठीक है जी। सारे प्राइज़ इंपोर्टेंट बन गए, याद रखने ने। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने की करिया? एक कमेटी बनाई प्रोफैशनल इंजीनियर बिल दे लई। प्रोफैशनल इंजीनियर बिल बनाने दे लई एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ IIT मद्रास दे फॉर्मर डायरैक्टर कौन से? MS आनंद की चेयरमैनशिप के अंडर कमेटी बनाएगी प्रोफैसर इंजीनियर बिल बनाने के लिए। सिमिलर एक सिंगल लाइन के याद रखना है। ठीक है जी। इस तो इलावा अनिल खुंबले ICC द्वारा कमेटी बनाई गई सी सैलीवा के यूज़ में बैन किया गया सी, जिस द्वारा कोविड-19 के कारण सैलीवा के यूज़ में बैन किया गया सी। कमेटी बनाई गई सी अनिल खुंबले की चेयरमैनशिप के अंडर। BP कताके ते SCL दास असम दे विच अग लगी सी एक बेसिकली तिनसुकिया असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट दे विच बंजम ऑयल वैल सीगा जिस दे विच अग लगी सी, जिसकी जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए
कमेटी बनाई गई, दो कमेटियां बनाई गई सी। एक बनाई गई सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिहड़ी कमेटी बनाई गई उसके हैड अपॉइंट किए गए सी SCL दास। तो जिहड़ी कमेटी NGT द्वारा बनाई गई, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, उसके हैड अपॉइंट किए गए सी BP कताके, जस्टिस BP कताके। जी कृष्णा रेड्डी डिप्टी होम मिनिस्टर ने, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम कह सकते हैं, जी कृष्णा रेड्डी। यह फ्रीडम फाइटर्स के वैलफेयर के लिए जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी, फ्रीडम फाइटर्स के वैलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई, उसके हैड अपॉइंट किए गए सी जी कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड एथलैटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन गिटनिया पोलैंड। सब तो पहले तो याद रखना है वैन्यू कि वर्ल्ड एथलैटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलैटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप है जिहड़ी कित्थे हैल्ड की जाएगी, कित्थे हैल्ड की जाएगी, गिडनिया पोलैंड दे विच। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करंसी ਜ਼ਲੋਤੀ चलती है। कैपिटल और करंसी जरूर याद रखनी है, SSC के एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, CHSL के एग्जाम के अगर आप गल करिए या फिर होर भी काफ़ी एग्जाम्स ने, इन्हों के जरूर पूछी जाती है कैपिटल करंसी जिहड़ी न्यूज़ के रहिंदियां ने, जिहड़ी कंट्रीज़। पोलैंड कैपिटल वॉर्सो है, करंसी ਜ਼ਲੋਤੀ गिडनिया के हैल्ड की जाएगी। और इस दे लई एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं कॉन्स्टेंटीना डीटा। ये कित्थों बिलोंग करते हैं, रोमानिया तो बिलोंग करते हैं, रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट है और करंसी इत्थे दी ल्यू है, करंसी ल्यू है। बेसिकली रोमानिया दे 2008 ओलंपिक चैंपीयन ने कॉन्स्टेंटीना रीटा, इन्हां नूं एंबेसडर अपॉइंट किया गया एथलैटिक्स हाफ मैराथन चैंपीयनशिप के लिए। लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन, इन्हां दोनों नूं इंडियन एंबेसडर अपॉइंट किया गया, इंडिया के लिए ट्रेड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं आस्ट्रेलिया द्वारा। इंडिया नूं आस्ट्रेलिया द्वारा ट्रेड एंबेसडर अपॉइंट किए गए लीसा सिंह बेसिकली पॉलिटिशियन ने आस्ट्रेलिया के विच, और मैथ्यू हेडन क्रिकेटर ने, आस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने मैथ्यू हेडन। इन्हां दोनों नूं एज ए ट्रेड एंबेसडर अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा, ताकि इंडिया और आस्ट्रेलिया के जिहड़े ट्रेड टाइज ने उन्होंने इंप्रूव किया जा सके। सौरभ गांगुली वैसे तो BCCI के 39 नंबर के प्रेजिडेंट ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के। इस तो इलावा सौरभ गांगुली नूं ही JSW सीमेंट का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी सुनील चेत्री के नाल। इन्हों ओलंपिक की गल करते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स है 2021 के, इस दे लई भी एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी गुडविल एंबेसडर सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट डेवलप्ड बाय 3 तमिलनाडु स्टूडेंट्स इन सब ऑर्बिट। बेसिकली कि केड़ी कंट्री की स्पेस एजेंसी इंडिया सैट लॉन्च करेगी। बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन्होंने स्टडी नहीं किया होगा, नहीं पढ़िया होगा, वो सोचेंगे कि इंडिया की सैटेलाइट्स है तो इंडिया की जी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसनों लॉन्च करेगी, नहीं, पर इसनों लॉन्च कर रही है नासा, USA की स्पेस एजेंसी नासा। नैनो सैटेलाइट बनाई गई है इंडिया सैट। तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट्स ने, डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं की होया कि तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट्स इन्होंने की किया, वर्ल्ड की समोलेस्ट और लाइटेस्ट, सब तो हल्की तो सब तो छोटी सैटेलाइट बनाई है। कितनी है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर की सैटेलाइट है, 3 सेंटीमीटर साइज़ के 3 सेंटीमीटर की सैटेलाइट है। और लाइटेस्ट की गल करिए वेट के सिर्फ 64 ग्राम की है, 64 ग्राम की 3 सेंटीमीटर की सैटेलाइट डेवलप की है इंडिया सैट नैनो सैटेलाइट है, जिसनों डेवलप किया गया तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट्स। नाम याद रखांगे, एम अदनाम, एम केसवान, वी अरुण। 3 स्टूडेंट्स ने इन्हां द्वारा बनाई गई
नैनो सैटेलाइट नासा इसनूं लॉन्च करेगी, नासा लॉन्च करेगी। नाम याद रखांगे सैटेलाइट का इंडिया सैट, इंडिया सैट। नासा की गल करते हैं, वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर है नासा द्वारा। अगर आप गल करते हैं जिम ब्राइडस्टीन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस एजेंसी है। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है। और रोस्कोसमोस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा नासा की ही गल करते हैं। नासा ने रिसेंटली की करिया सी, एक टैलीस्कोप का नाम चेंज किया सी। उसका नाम दसने कमेंट बॉक्स दे विच कि किन्ना दे नाम ते वो टैलीस्कोप का नाम चेंज किया गया सी। दूसरा, नासा की जिहड़ी बिल्डिंग है वाशिंगटन DC दे विच, उसका नाम भी किसी साइंटिस्ट के नाम से, किसी एस्ट्रोनॉट के नाम से रखा गया। उन्हों का नाम भी कमेंट बॉक्स के विच दसना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ रहे नासा रिलेटेड, कमेंट बॉक्स के विच दसने ने। नेक्स्ट है 6th सैशन ऑफ इंडिया नॉर्वे जॉइंट कमीशन। इंडिया और नॉर्वे की जॉइंट कमीशन मीटिंग हैल्ड की गई। इंडिया और नॉर्वे की जॉइंट कमीशन मीटिंग हैल्ड की गई। 6वां सैशन हैल्ड किया गया किन्ना द्वारा हैल्ड किया गया? सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। इंडिया और नॉर्वे कैपिटल ओस्लो है, करेंसी क्रोन चलती है। अच्छा, ओस्लो तो याद रखना है पीस प्राइज़ कित्थे दिता जाता है? ओस्लो दे विच दिता जाता है। तो बाकी सारे प्राइज़ कित्थे दिते जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम दे विच। नोबल प्राइज़ जिन्ने भी ने स्वीडन के स्टॉकहोम दे विच, और पीस प्राइज़ है जिहड़ा ओस्लो दे विच। इंडिया वालों सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, राज्य सभा MP ने गुजरात तो, इन्हां द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इंडिया नॉर्वे की जॉइंट कमीशन मीटिंग के लिए। ठीक है जी। रवि शंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इन्हां लवे। इस तो इलावा IT मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्रियां होल्ड कर रहे हैं रवि शंकर प्रसाद। राज्य सभा MP ने बिहार तो, पटना बिहार तो लोक सभा MP ने, पटना बिहार तो लोक सभा MP ने रवि शंकर प्रसाद। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। डॉक्टर हर्षवर्धन लवे है चांदनी चौक, दिल्ली तो लोक सभा MP ने। अमित शाह होम मिनिस्टर ने गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है विच कंट्री इज री इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर 2 ईयर्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गल करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्रुप है जिहड़ा कि 2015 दे विच बनाया गया सी, इंडिया और फ्रांस द्वारा मिलके बनाया गया सी। प्रेजिडेंट किन्हां नूं अपॉइंट किया गया? इंडिया नूं। इंडिया पहले भी प्रेजिडेंट सीगा, इसनूं दोबारा प्रेजिडेंट बनाया गया 2 सालों के लिए। वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया फ्रांस नूं 2 सालों के लिए। 2015 दे विच इस ग्रुप नूं बनाया गया। बेसिकली अगर आप अर्थ की गल करिए तो अर्थ दे विच तुहानूं याद होए, जिसनूं जियोग्राफी दे विच इंटरस्ट है कि यह इक्वेटर लाइन है। अगर आप इसनूं इक्वेटर मान लीए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न है। ठीक है, तो जिन्नी भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न के अंडर आंदियां ने, यह कंट्रीज इस दियां मैंबर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस दियां। क्योंकि ये जिहड़ी कंट्रीज ने, इन्हां दे उत्ते जिहड़ी सन रेज ने काफ़ी ज़्यादा डायरैक्ट पैंदियां ने, इस करके इन्हां कंट्रीज दे विच जिहड़ी सन यूज़ किया जा सकता है, सोलर अलायंस का यूज़ किया जा सकता है, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। तो इस करके इंडिया 87th मैंबर कौन है इस बेसिकली इस दे विच 87 मैंबर्स ने। 87th मैंबर रिसेंटली अपॉइंट किया गया सी निकारागुआ नूं। निकारागुआ कंट्री नूं 87th मैंबर अपॉइंट किया गया सी। ये याद रखना है। गुरुग्राम हरियाणा दे विच इसदा हैडकुआटर है। गुरुग्राम हरियाणा दे विच इसदा हैडकुआटर है। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने की किया? किसान रेल लॉन्च की है। चौथी किसान रेल लॉन्च की है। चौथी किसान रेल कित्थों तो कित्थों तक लॉन्च की गई? नागपुर महाराष्ट्र तो आदर्श नगर दिल्ली तक। नागपुर महाराष्ट्र तो आदर्श नगर दिल्ली तक चौथी किसान रेल लॉन्च की गई।
अगर आप गल करते हैं बाकी तो जिन्ने ऑप्शनस ने ये सारी किसान रेल्स ने, इस करके ही ऑप्शन इस तरीके नाल बनाए ने ताकि बाकी किसान रेल्स भी याद हो सकन। सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगी पहली किसान रेल, UPPSC के एग्जाम के भी पूछी गई है, SSC CHSL के एग्जाम के भी पूछी जा चुकी है। देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक, देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक किसान रेल चलाई गई सी। देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक किसान रेल। अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शन की, सब तो पहली देवलाली किसान महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार, दूसरी अनंतपुर आंध्र प्रदेश तो दिल्ली तक, तीसरी बेंगलुरु कर्नाटका तो हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली तक। ठीक है जी, याद रखने ने। नितिन गडकरी की गल करिए, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ने नागपुर महाराष्ट्र तो ही लोक सभा MP ने, नागपुर महाराष्ट्र तो ही लोक सभा MP ने। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र रिलेटेड कुछ स्कीम्स डिस्कस कर लेने। सब तो पहले अगर आप गल करिए मी अन्नपूर्णा स्कीम, मी अन्नपूर्णा स्कीम महाराष्ट्र की, शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र की, प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र का, महापरवान स्कीम, महाजॉब्स पोर्टल भी महाराष्ट्र द्वारा। इस तो इलावा रिसेंटली महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र द्वारा। बाला साहब ठाकरे के नाम के उत्ते एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च की गई सी। माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी कैंपेन महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया सी। ठीक है जी। महाराष्ट्र रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो भी अगे डिस्कस करांगे। सब तो पहले डिस्कस करते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया गया केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसनों लॉन्च किया गया उड़ीसा द्वारा। साफ ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया गया है उड़ीसा द्वारा। बेसिकली हजे इसनों पायलट बेसिस के उत्ते दो सिटीज़ के विच भुवनेश्वर और पुरी डिस्ट्रिक्ट के विच लॉन्च किया गया है, याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, उड़ीसा की गल करते हैं। उड़ीसा की स्कीम्स अगर आप डिस्कस करिए तो कालिया, पीठा, अम्मा घरे, सुनेत्र, समृद्धि, अबादा स्कीम, सुनेत्र स्कीम। इस तो इलावा मो सरकार, मो परिवार, मो कल्याण, मो जीवन, मो प्रतिभा, ये सारी स्कीम्स कितने दी ने उड़ीसा दियाँ। इस तो इलावा बलराम स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई सी। गरिमा स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई सी। सबूजा उड़ीसा स्कीम भी रिसेंटली लॉन्च की गई सी। सुनामी रेडी टैग उड़ीसा नूं दिता गया सी। इस तो इलावा ISI सर्टिफिकेट दिता गया सी ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए एजुकेशन सेंटर भी बनाए गए सी उड़ीसा द्वारा। सारे फैक्ट्स याद रखने ने उड़ीसा रिलेटेड। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने, पहले वो भी डिस्कस करांगे। उड़ीसा द्वारा एक होर न्यूज़ है उड़ीसा रिलेटेड कि उड़ीसा नेशनल रग्बी टीम नूं स्पॉन्सर करेगी 2023 तक एट कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा। कलिंगा स्टेडियम दे विच नैशनल रग्बी टीम्स नूं 2023 तक स्पॉन्सर करेगी उड़ीसा। महाराष्ट्र की गल करते हैं तो जिहड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन्होंने की कराया, अनाउंस किया है कि जलयुक्त शिवर वाटर कंजरवेशन स्कीम है ये देवेंद्र फडनाविस गवर्नमेंट द्वारा। जिहड़े महाराष्ट्र के पहले इस तो इन्हों तो पहले चीफ मिनिस्टर होंगे सी देवेंद्र फडनाविस सीगे। ठीक है, इन्हों की सरकार होंगी सी तो इन्हों द्वारा जलयुक्त शिवर वाटर कंजरवेशन स्कीम लॉन्च की गई सी। ठीक है, बाद दे विच कहा गया कि स्कीम दे विच घपले होए ने तो हुण इसकी जांच की जाएगी। प्रॉब का मतलब जांच करना होंदा है कि इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, आपने लिए कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है इन्हां चों, आपने लिए डायरैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि जलयुक्त शिवर वाटर कंजरवेशन स्कीम, जलयुक्त शिवर वाटर कंजरवेशन स्कीम है जिहड़ी ये कित्थे दी है, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गोवा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टाइज अप विद इंडिया पोस्ट टू गेट फार्मर्स एनरोल्ड इन PM किसान स्कीम।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਐਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੋਸਟਲ ਡੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਡੇ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲੈਟੇਬਿਲੀ ਡੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਤੋਂ 15 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵੀਕ। ठीक है, 1 अक्टूबर ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵਰਲਡ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਡੇ ਵੀ ऑब्जर्व किया गया ਸੀ। ठीक है, सारे डेज याद रखने। नेक्स्ट है वर्ल्ड बिगेस्ट, अच्छा विच गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मैल्टर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड का सब तो बड़ा जिंक स्मैल्टर प्रोजेक्ट किहड़ी स्टेट दे विच लगाया जाएगा। वर्ल्ड का सब तो बड़ा जिंक स्मैल्टर प्रोजेक्ट यानी कि जी जिंक मैटल है उसनों पिघलाने के लिए और उस तो बाद उस तो डिफरेंट चीज़ां बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा। उस प्लांट नूं सब तो बड़ा होएगा वर्ल्ड का, कित्थे लगाया जा रहा है? गुजरात दे विच, गुजरात के दोसावाड़ा दे विच, गुजरात के दोसावाड़ा दे विच, या दोसावाड़ा तापी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुजरात के किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच? तापी डिस्ट्रिक्ट के दोसावाड़ा दे विच। जिस तरीके नाल अगर आप रिसेंटली डिस्कस करते हैं तो गुजरात के आनंद दे विच हनी टैसटिंग लैबोरेटरी लगाई गई सी। गुजरात के आनंद दे विच हनी टैसटिंग लैबोरेटरी। सिमिलर तरीके नाल गुजरात के पोरबंदर दे विच सी फूड एक्सपोर्ट लैबोरेटरी लगाई गई सी। सी फूड एक्सपोर्ट लैबोरेटरी गुजरात के पोरबंदर दे विच। ठीक है, इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात के किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच या किहड़ी सिटी दे विच दोसावाड़ा दे विच लगाया जाएगा जिंक स्मैल्टर प्लांट, वर्ल्ड का सब तो बड़ा। याद रखना है। अच्छा, गुजरात ने अगर आप रिसेंटली गल करिए तो स्टार्टअप रैंकिंग दे विच टॉप किया सी गुजरात द्वारा। फूड सेफ्टी रैंकिंग दे विच भी गुजरात द्वारा टॉप किया गया सी। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन दे विच, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन दे विच भी टॉप किया सी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स दे विच भी टॉप किया गया सी गुजरात द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ऑप्शंस दे विच राजस्थान द्वारा रिसेंटली मोक्ष कलश योजना लॉन्च की गई सी। रिसेंटली राजस्थान द्वारा एक खाने के रिलेटेड लॉन्च की गई सी स्कीम। राजस्थान द्वारा खाने के रिलेटेड जी स्कीम सी मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, चलो कमेंट बॉक्स के तुसीं दसनी है। ठीक है, यूपी हर्बल रोड्स यूपी द्वारा अनाउंस किए गए 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन यूपी द्वारा याद रखने ने। इस तो इलावा यूपी ने रिसेंटली यूपीपीएससी के एग्जाम के खुशीनगर एयरपोर्ट पूछा गया सी। खुशीनगर एयरपोर्ट कित्थे है? यूपी के है, जिसनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिता गया सी। एयरपोर्ट की गल करते हैं तो पौंडीचेरी एयरपोर्ट रिसेंटली इसके बारे आप डिस्कस किया कि पौंडीचेरी एयरपोर्ट इंडिया का सोलर सारी जोड़ा वर्क करता है 100% सोलर एनर्जी के उत्ते वर्क करता है। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करिए असम की तो असम के रिलेटेड आप डिस्कस की सी औरनदोई स्कीम। रिसेंटली औरनदोई स्कीम डिस्कस की सी। रिसेंटली असम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई सी डिस्कवर हैरीटेज ऑफ असम। डिस्कवरी हैरीटेज ऑफ असम इसनों जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया सी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के रिलेटेड एक न्यूज़ हो रहा है और डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी दे विच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नवंबर 2022 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। रिसेंटली अनाउंस किया गया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किन्ना द्वारा बनाया जाएगा, कित्थे बनाया जाएगा? होलोंगी अरुणाचल प्रदेश दे विच। होलोंगी अरुणाचल प्रदेश दे विच। गुजरात द्वारा डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पास किया गया। तुहानूं याद होगा आप डिस्कस किया कि नागालैंड ने 6 महीनों के लिए अपने आप में डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस किया सी। ठीक है, सिमिलर तरीके नाल एक स्टेट द्वारा होर भी अनाउंस किया गया सी। तो गुजरात ने की करा कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट सीगा जिहड़ा इसदे विच कुछ अमेंडमेंट्स कीतियां गुजरात की असैंबली ने पास किया। उस तो बाद प्रेजिडेंट द्वारा फाइनली अप्रूवल दी गई है। रिसेंटली अप्रूवल दी गई है। इंपोर्टेंट बनेगा कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट किहड़ी स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया है? गुजरात द्वारा।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।